Okay, good afternoon, everyone. In today's English class, we're going to do the vocabulary words that are given in your grammar book, right? That is actually chapter number 28 and page number is 117. I'll be sharing the screen. So right now, you can look at the screen only. No need to look in the books, but you should have the books with you, right? I want everybody, if it is possible, please switch on your camera. Saksham Soni, beta, please sit straight. Every day you are sitting in the same way. Please sit straight, everybody. Very good. Very nice. All right. Sit straight. So I'm going to share the screen, and now you don't need to look in the book. Okay. Now, what is vocabulary words? Let us see here. We have many vocabulary words have been given, but in PT1, we'll be covering only 10 words, right? So you need to look at the board on the screen. Yes. The first word that we have is accustomed. That is accustomed. Now, it is an adjective. What is accustomed? When something becomes habit. It means you become accustomed to it. Means अगर आपको किसी चीज की habit पड़ जाए, आपको किसी चीज की आदत पड़ जाए, तो हम उसे बोलते हैं कि you have become accustomed to it, right? So let us see what is the sentence. My family is accustomed to eating dinner at 8 p.m. sharp. मेरी फैमिली को 8 p.m. पे शार्प खाना खाने की हैबिट है. Accustomed मतलब हमें हैबिट हो गई है कि 8 o'clock हम लोग खाना खा लेते हैं, राइट? सो accustomed वर्ड जो है वो कस्टम से बना है. कस्टम्स होते हैं रिचुअल्स जो हम फॉलो करते हैं. सो accustomed वर्ड इज दैट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कस्टम, और इसका मतलब होता है किसी चीज की हैबिट बन जाना, राइट? सो आई हैव टेकन वन मोर एग्जांपल. दीज पीपल आर accustomed टू हार्ड वर्क. ये जो लोग हैं ये इन्हें हैबिट हो चुकी है हार्ड वर्क करने की, राइट? सो accustomed means a habit of doing something. Clear? This word is clear to everybody. So now what you have to do is that you need to learn all these words. आपको इन सब words को learn करना है along with their meanings. So these can come in any form. किसी भी तरह से एग्जाम में आ सकते हैं. You can be asked the meaning of the words, or you can be asked to match the proper meaning of the words, right? So first word we have done is accustomed. Now let us move to the second word. The second word is astonished. Astonished word. I hope you have read this word earlier also. Astonished हो जाना means हैरान हो जाना. So that is also an adjective. Astonished भी adjective ही है. It is a describing word. And astonished का मतलब होता है surprised or shocked. इस चीज को देख के जब आप हैरान हो जाते हैं, अब उसे आप बोलते हैं that you are astonished. Now let us see an example of the sentence here. We were all astonished when the magician made the girl disappear from the box. हम सब astonish हो गए. Astonish हो जाना मतलब हैरान हो जाना. So हम सब हैरान हो गए कब? जब हमने मैजिशियन को देखा कि उसने एक बॉक्स में से गर्ल को डिसअपेयर कर दिया. वहां से वो गर्ल पहले थी लेकिन वहां से वो दिखाई देनी बंद हो गई, वो कहीं चली गई. तो ये जो मैजिक ट्रिक थी ये देख के हम सब क्या हो गए? हैरान हो गए. Now I was astonished to see her name in the list of failures. Failures means जो बच्चे फेल हो गए थे उसमें जब मैंने उस लड़की का नाम देखा तो मैं देख के हैरान हो गया, right? It was a shock for me. वो मेरे लिए shocking था. Astonished. So if you are asked the synonyms of astonished, same meaning words कौन-कौन से हो सकते हैं? It can be surprised or it can also be shocked. Clear to everybody? These two words are clear. Are these words clear, bete? And you can also be asked to frame sentences, right? Bete, very nice. Who's this? Who's unmuted? If you want to stay in the class, keep yourself muted because you're continuously disturbing. Now let us move to the third word. The third word that we have is ashamed. Ashamed is a very common word. It is again an adjective. Ashamed bhi kaun sa part of speech hai? It is also an adjective. When you do something wrong or bad and feel upset about it, you are ashamed. आप जब कुछ गलत करते हैं, है ना, या आपसे कुछ गलत हो जाता है या आप जान के करते हैं और बाद में आप उसको जब आपको सबको पता चलता है कि आपने वो काम किया है तो आप कैसा फील करते हैं? अपसेट फील करते हैं. डिस्टर्ब. अपसेट मींस यू डोंट फील गुड.
अपसेट हो जाना मतलब बुरा लगना किसी चीज के लिए, और आपको उस चीज का बुरा लगता है और बाद में आपको शर्म आती है कि ओ मैंने ऐसा क्यों किया। सो अशेम्ड इज कि आपको जब किसी अपने ही किसी बात पे शर्म आए तो उसे बोलते हैं कि यू आर फीलिंग अशेम्ड, राइट। नाउ व्हाट इज द सेंटेंस? The sentence is Rohan was ashamed when he found out that his friends knew he had cheated in the games, in the game. So रोहन को क्या हुआ, रोहन को कब शर्म आई? रोहन को शर्म आई जब उसको ये पता चला कि उसके फ्रेंड्स सबको पता चल गया कि उसने गेम खेलते हुए चीटिंग की थी, है ना, यानी कि उसने कोई गलत काम किया था, दैट मींस ही हैड डन समथिंग रॉन्ग। और जब उसे सबको पता चल गया कि उसने वो गलत काम किया है तो उसे अपने आप पे शर्मिंदगी फील हुई, उसे शर्म आई अपने ऊपर। अलीशा वालिया बेटे, व्हाट आर यू लुकिंग एट? अलीशा आप नीचे क्या देख रहे हैं बेटे? I am sharing the words on the screen, so there is no need to look in the book. Yes? Yes, Alicia? You're not audible. Right. Now let us see the second sentence that we have. The second sentence is, he felt ashamed of himself as he could not help me. उसे खुद पे शर्म आई क्योंकि वो मेरी हेल्प नहीं कर पाया था, ठीक है? So that is ashamed. I hope ashamed word is clear to everybody. Moving to the next word, blaze. Now what is blaze? Blaze here is a verb. Verb है, action word है. Now what is the meaning of the word blaze? To burn brightly or powerfully. जब कोई चीज बहुत ज्यादा शाइन करके चलती है और पावर के साथ बहुत ज्यादा जोर से चल रही है, ठीक है, then it is called blaze. Then it is called कि वो it is blazing. Now the sun was blazing overhead. जो सन था वो हमारे हेड के ऊपर, ओवरहेड मींस हमारे हेड के ऊपर ब्लेज करना। तो ब्लेज करना यहाँ पे बहुत तेज शाइन करना, इतनी तेज, प्रोड्यूसिंग हीट ऑल्सो, जो बहुत ज्यादा शाइन कर रहा था और साथ में हीट भी प्रोड्यूस हो रही थी। दैट इज व्हाट इट इज मेंट फॉर सन। सन के लिए यहाँ पे इसलिए यूज हो रहा ब्लेजिंग वर्ड क्योंकि हम बोलते हैं कि जल रहे हैं हम गर्मी से, सो दैट इज ब्लेजिंग। नेक्स्ट, विदिन 10 मिनट्स द होल बिल्डिंग वाज ब्लेजिंग। 10 मिनट के अंदर अंदर जो पूरी बिल्डिंग थी वो सारी ब्लेजिंग, ब्लेजिंग मींस उसमें इतनी बुरी तरह से आग लगी थी कि वो सारी बिल्डिंग जो थी बहुत बुरी तरह से बर्न हो गई थी, और उसमें से इतनी मतलब फायर जो थी इतनी जोर से लगी हुई थी कि it was shining very brightly, right? So blaze can be a verb also, and it can be a noun also. We have done this word blaze last year in class 4. Does anybody remember that? Does anybody remember blaze as noun किया था हमने last year? Yes, nobody? Does anybody remember? We have done this word blaze, but we have done it as a noun in class 4. Nobody remembers. All right, bete, blaze word can be used as a noun also, and it can be used as a verb also, but here we are doing it as a verb. Right. Now the next word that we have is burst. I hope I have not skipped any word. Yes. The next word is, fifth word is burst. Burst is a very common word. You all must have used and heard it. It is also a verb. It is also an action word. Suddenly break down or break apart. एकदम से कोई चीज जब टूट जाती है या फट जाती है, हम उसे burst word यूज करते हैं। तो अगर आपने नॉर्मली देखा होगा तो burst word हम किसके साथ यूज करते हैं? प्लीज कैन यू टेल मी, burst word किसके साथ यूज करते हैं यूजुअली? Can I tell? Yes. मैम जब आप कोई चीज मैम एक्सप्लोज हो जाती है, एक्सप्लोड होती है, यस, बट हम एक नॉर्मली जब सबसे ज्यादा ये बर्स्ट वर्ड कहाँ यूज करते हैं? यू रिमेम्बर? मैम तो मैम बॉम्ब बर्स्ट। यस, बॉम्ब बर्स्ट होता है। ओके, मनमोहन कौर, ऑलराइट, हम बलून्स के साथ यूज करते हैं, इफ यू रिमेम्बर, उसका बलून बर्स्ट हो गया, यू रिमेम्बर? सबसे कॉमनली हम बलून के साथ यूज करते हैं। So burst means to suddenly break down or break apart. कोई चीज जब टूट जाती है, या हम टायर्स के साथ भी यूज करते हैं ना, कार के टायर burst हो गया। So here let us take an example here. She burst into tears when she heard the bad news. अब यहाँ पे वो कह रहे कि जब उसने वो बैड न्यूज सुनी तो वो burst into tears means एकदम से बहुत जोर से रोने लगी।
ठीक है, तो हम उसको बहुत जोर से एकदम से जब कोई जोर से रोने लगता है हम उसको ये भी कह सकते हैं दैट शी बर्स्ट इनटू टीयर्स, जोर जोर से रोने लगी। नेक्स्ट एग्जांपल इज द बॉम्ब बर्स्ट ओवर द सिटी किलिंग हंड्रेड्स ऑफ पीपल। सो जो बॉम्ब था वो जो बर्स्ट हुआ, वो जो फटा, तो वो जो ब्रेक हुआ तो उससे क्या हुआ, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग उस बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए, राइट। सो बर्स्ट वर्ड मींस फट जाना एकदम से। नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज bully. Now bully is a noun and it is a verb again. Okay, so we are also going to do a chapter later on in class 5. Now the word bully is a noun here. Now what does bully means? A bully is a person who is mean to people who are younger or weaker than him. ऐसा पर्सन जो अपने से छोटे लोगों के लिए या अपने से जो कमजोर लोग होते हैं उनके साथ ठीक से बिहेव नहीं करता, उनको बुरी तरह से ट्रीट करता है, ऐसे पर्सन को हम बुली कहते हैं। I'll give you an example. अगर आपकी क्लास में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सा बच्चा है, ही इज वेरी वेल बिल्ट, बहुत अच्छा, हाइट भी उसकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, एंड बॉडी भी स्ट्रॉन्ग है, और वो जो छोटे छोटे जो क्लास में छोटे बच्चे हैं जो वीक लगते हैं उसके सामने देखने में उन बच्चों को डराता है कि ऐसा कर, मेरा ये वाला काम कर, नहीं तो मैं तेरे को मारूंगा, और वो जो दूसरे बच्चे हैं वो उससे डर के उसके सारे काम करते हैं। तो that person will be called a bully person, जो दूसरों को डराता है because he is very strong and or who is very who is elder to the others. कोई कुछ लोग बड़े होते हैं, एज में बड़े होते हैं, तो वो अपने छोटे, अब आप लोग भी अपने छोटे ब्रदर सिस्टर, जिनके छोटे ब्रदर सिस्टर है, तो आप अगर उसे अपने ब्रदर सिस्टर से कोई काम करवाते हो ना, ऐसा मेरा काम कर दे नहीं तो मम्मी से देख तेरी क्या पिटाई करवाऊंगा, बोलते हो ना ऐसे। अगर आप छोटे हैं तो आपके बड़े ब्रदर सिस्टर आपके साथ ऐसे करते होंगे, और अगर आप बड़े हैं तो आप भी कई बार अपने छोटे ब्रदर सिस्टर के साथ ऐसे करते होंगे। सो इन दैट केस अगर आप अपने से वीक पर्सन को या अपने से छोटे एज वाले लोगों को इस तरह से डराते हैं या उनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं, देन यू आर अ बुली। ऐसे पर्सन को हम बुली बोलते हैं, राइट। सो द सेंटेंस वी हैव इज all the students hated the class bully, but they were too weak to fight against him. अब क्लास में वो कह रहे हैं कि जो बुली था, जो ऐसा बच्चा था क्लास में जो सबसे स्ट्रॉन्ग था और सबको तंग करता था, उससे सारे बच्चे हेट करते थे, नफरत करते थे, लेकिन वो सारे बहुत वीक थे और वो उसके अगेंस्ट नहीं लड़ सकते थे। बट दे वर टू वीक टू फाइट अगेंस्ट हिम, वो इतने वीक थे कि वो उसके अगेंस्ट उसके साथ नहीं लड़ सकते थे। And next sentence that we have is don't be such a bully, nobody will talk to you. कह रहा कि ऐसे बुली मत बनो, ऐसे पर्सन, इतने गंदे पर्सन मत बनो, दूसरों को मत डराओ, अदरवाइज तुमसे कोई भी बात नहीं करेगा, राइट। सो बुली वर्ड इज क्लियर टू एवरीबॉडी? ऑलराइट, let us move. We'll first cover all the 10 words and then if anybody has any problem then we'll discuss. Let us move to the next word. The next word is circumstance. Now circumstance word is again a very common word that you must have heard. हम बोलते हैं कि circumstances ठीक नहीं है, circumstances means situation ठीक नहीं है। So circumstance is a noun. It is an event that makes a situation happen. Just hold on. Yes, it is an event that makes the situation happen. ऐसा कोई event, ऐसा कोई चीज हो जाना that makes a situation happen, जिसकी वजह से कोई और काम हो रहा है, situation बन रही है। Now his poverty was because of the circumstances he had to face, as his father left him with lots of debts to be paid back. अब अगर यहाँ पे हम sentence देखें, right, so अगर हम यहाँ sentence देखें तो वो कह रहा है his poverty होती है, I told you this word yesterday only, poverty होती है गरीबी, राइट। सो उसकी गरीबी, वो कह रहा है कि उसके जो गरीब था वो इतना गरीब था, जो उसकी गरीबी थी वो किस वजह से थी, उसके सर्कमस्टेंसेस, उसके सिचुएशन की वजह से थी। और उसकी सिचुएशन कैसे पैदा हुई है, उसकी वो सिचुएशन क्यों हुई, जानवी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। because he had to face as his because of the circumstances he had to face as his father left him with lots of debts to be paid back. उसके फादर की जब डेथ हुई, वो कह रहा है कि जब उसके फादर की डेथ हुई तो उसके फादर बहुत सारे डेट्स मींस कर्जा, जब आपने किसी से पैसे लिए हुए हैं और आपको वापस करने हैं तो उसे हम डेट बोलते हैं। बी इज साइलेंट हियर, ठीक है। तो उसके फादर की डेथ हो गई और उसके फादर जब चले गए
तो उस पर्सन के ऊपर बहुत सारा कर्जा छोड़ गए, उससे बहुत सारा ऐसा कर्जा था जो वापस करना था, बहुत सारे पैसे थे जो चुकाने थे दूसरे लोगों के, इस वजह से उसके ये इस तरह के उसके सर्कमस्टेंसेस थे। सर्कमस्टेंसेस मींस किसी की कोई कैसी सिचुएशन में है, सिचुएशन का हम बोल देते हैं बेसिकली सर्कमस्टेंस। आई नो दैट आई कैन ट्रस्ट हर इन एनी सर्कमस्टेंस। वो कहते हैं कि मुझे पता है कि मैं उसको किसी भी सर्कमस्टेंस, कोई भी सिचुएशन हो, किसी भी तरह का टाइम हो मेरी लाइफ में, लेकिन मैं उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ। ट्रस्ट करना मतलब मैं उस पर विश्वास कर सकता हूँ। सो सर्कमस्टेंस में सिचुएशन, क्लियर, सर्कमस्टेंस, राइट। नेक्स्ट वर्ड, 8th वर्ड इज कंसोल। कंसोल करना क्या होता है? अगर मेरे फ्रेंड की सपोज मेरे फ्रेंड की पेंसिल गुम हो गई है, आपके किसी फ्रेंड की पेंसिल गुम हो गई है और उसके पेरेंट ने सुबह ही उसको नई पेंसिल दी थी, वो बच्चा रो रहा है कि वो मेरी पेंसिल गुम हो गई, और आप अपने फ्रेंड को समझाते हो कोई बात नहीं, कुछ नहीं कहेंगी मम्मा, कुछ नहीं कहेंगी मम्मा, आप मम्मा को सच बता देना। तो आप क्या कर रहे हो? आप क्या काम कर रहे हो? अपने फ्रेंड को कंसोल कर रहे हो, उसको कंफर्ट दे रहे हो, उसको आप अपनी बातों से उसका थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व तो नहीं कर पा रहे हो, लेकिन उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल पोजीशन में डाल रहे हो, आप थोड़ा सा उसको अच्छा फील करा रहे हो। सो कंसोल करना क्या होता है? इट इज अ वर्क टू कंफर्ट समवन हु इज सैड। किसी कोई ऐसा पर्सन है जो किसी भी रीजन से सैड है, उसको जब आप थोड़ा अच्छा फील कराने की कोशिश करते हो, उसके साथ अच्छी अच्छी बातें करके, तब आप उसको क्या कर रहे हैं? कंसोल कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड कंसोलिंग समवन। The example, look at the example. There was no one in the house when his house was burgled, so no one consoled him. अब कह रहे हैं कि उसके घर में जब burgled means जब उसके घर में चोरी हुई, तब उसके घर में कोई भी नहीं था, इसीलिए उसे कोई भी कंसोल नहीं करा पाया। अब घर में कोई होगा तभी तो थोड़ा सा उसको सांत्वना देगा, थोड़ी सी उसको हिम्मत देगा, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके घर में कोई था ही नहीं जो उसको कंसोल कर पाता, राइट, जो उसको थोड़ा सा अच्छा फील, बेटर फील करवा पाता। नेक्स्ट सेंटेंस इज नथिंग कुड कंसोल हिम व्हेन हिज वाइफ डाइड। अब नेक्स्ट एग्जांपल वो कह रहे हैं कि उसकी जब वाइफ की डेथ हुई तो वो इतना ज्यादा सैड था कि उसको किसी की भी बातों से अच्छा फील नहीं हो रहा था। वो बेटर फील क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी, और सब उसको समझा रहे थे, उसको अच्छा फील कराने की कोशिश कर रहे थे, उसको कंसोल कर रहे थे, उसको कंफर्ट कर रहे थे, लेकिन उसको किसी की भी बातों से अच्छा फील, बेटर फील नहीं हो रहा था। दिस इज कॉल्ड कंसोल। Okay, next word that we have is crush. Right. Next word that we have is crush. Crush करना. Have you ever seen कि जब आप बॉटल लेके आते हो, डिस्पोजेबल वाटर बॉटल्स लाते हो या कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स लाते हैं, तो उसके पीछे हमेशा लिखा होता है क्रश द बॉटल आफ्टर यूज। हैव यू एवर नोटिस्ड इट? कभी देखे हैं वो जो प्लास्टिक की वाटर बॉटल्स लाते हैं उसके पीछे लिखा होता है क्रश इट आफ्टर यूज। सो व्हाट डज दैट मीन? उसको दबा दो, उसे प्रेस कर दो, उसकी इतनी जोर से प्रेस करो कि उसकी शेप खराब हो जाए। व्हाई? ताकि उस बॉटल को कोई रीयूज ना कर पाए। दैट्स व्हाई। सो क्रश करना मतलब किसी चीज को अच्छे से पीस देना, या उसकी शेप इतनी जोर से उसको प्रेस करना कि उसकी शेप चेंज हो जाए, राइट। सो टू प्रेस समथिंग सो हार्ड दैट इट लूजेस इट्स शेप। किसी चीज को इतनी जोर लगा के प्रेस करना कि उसकी शेप जो है वो लूज हो जाए। लूज हो जाना मतलब चेंज हो जाना। आपकी मम्मा क्रश करती है ना कोई चीज, कई बार जो स्पाइसेस होते हैं उन्हें क्रश करती हैं। क्रश करना मतलब उनको पीस देना। तो पीस करने से क्या हो जाता है? उसको जब हम इतनी जोर से मम्मा उसको दबा के क्रश करती हैं, तो उससे क्या होता है? उसको अगर सपोज वो पूरे राउंड शेप की एक काली मिर्च थी, आपने देखा होगा, उसको अगर प्रेस करोगे तो क्या होगा? उसकी शेप चेंज हो जाएगी, पाउडर बन जाएगा। तो किसी चीज को इतनी जोर से प्रेस करना कि उसकी शेप चेंज हो जाए। नाउ सेंटेंस, लुक आउट दैट बिग रॉक इज गोइंग टू फॉल डाउन एंड क्रश योर कार। कह रहे कि देखो देखो, वो बड़ी सी जो रॉक है वो गिरेगी, वो गिरने वाली है और तुम्हारी कार को क्या कर देगी? क्रश कर देगी। यू मस्ट हैव सीन इन द मूवीज कि अगर बड़ा सा पत्थर आके, या अपने नॉर्मल वीडियोस भी कई बार देखी होंगी, बहुत बड़ा सा अगर रॉक है या वेरी बिग पीस ऑफ स्टोन वो आके कार के ऊपर गिरे, तो उसकी इतनी जोर से वो गिरता है कि कार के जिस पार्ट के ऊपर वो गिरेगा उसकी शेप चेंज हो जाती है, वो कार दब जाती है वहां से, राइट। Now next example is his arm was badly crushed in the car accident. उसकी जो आर्म थी वो एक्सीडेंट में बुरी तरह से क्रश हो गई, दब गई, राइट। लास्ट वर्ड दैट वी हैव इज कर्स। कर्स करना होता है मतलब किसी को गंदा बोलना, किसी के बारे में बुरा सोचना, बुरा बोलना कि तुम्हारे साथ तो ऐसा हो जाए, तुम्हारे साथ तो ऐसा हो जाए।
that is called cursing. अगर आपने स्टोरीज पढ़ी माइथोलॉजिकल स्टोरीज तो माइथोलॉजिकल स्टोरीज में कर्स वर्ड बहुत होता है. ब्लेसिंग, बून, कर्स. कर्स करना मतलब किसी को बददुआ देना, बुरा करना. ठीक है, आपने देखा वो ऋषि जो होते थे वो जब गुस्से में आते थे तो वो अगर उनको कोई परेशान कर रहा है और वो गुस्से में आ जाते थे तो वो कर्स करते थे, तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए, है ना. तो कर्स करना होता है ब्लेसिंग का ऑपोजिट होता है. ब्लेस करना मतलब किसी को अच्छा कहना कि तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लाइफ में, तुम हमेशा खुश रहो, दैट इज कॉल्ड अ ब्लेसिंग. लेकिन अगर आप कहते हैं तुम्हारे साथ हमेशा बुरा ही हो तो आप क्या कर रहे हैं, कर्स कर रहे हैं किसी को, उसके साथ बुरा बोल रहे हैं उसको. सो द मीनिंग इज टू से और थिंक बैड things about someone. किसी के बारे में बुरा बोलना या बुरा सोचना, that is called curse. Now let us see the sentence. The bad witch said that she would curse that baby princess because she was not invited by the king to the palace. जो बुरी सी witch थी, yeah, this sentence has been taken from a story, I think. Sleeping Beauty में से है, I think. The bad witch, जो बुरी सी witch थी, witch कौन होती है, जादूगरनी. सो जो बैड विच थी उसने कहा कि वो बेबी को कर्स करेगी मींस उसको गंदा, उसको उसके बारे में क्या बुरा बोलेगी कि वो वो कर्स करेगी बेबी प्रिंसेस को. क्यों? क्योंकि उसको किंग ने अपने शिवांश एंड हरगुन, म्यूट योरसेल्फ. हो क्या हो जाता. शिवांश, म्यूट योरसेल्फ. Yes. So वो कह रहे हैं कि उस बैड विच ने कहा कि वो उस बेबी प्रिंसेस के बारे में बहुत बुरा बोलेगी और उसको गंदी उसके बारे में गंदा बोलेगी क्योंकि उसके फादर ने, किंग ने, उस जो विच है उसको इनवाइट नहीं किया था. नेक्स्ट सेंटेंस है शी कर्स्ड हरसेल्फ फॉर हर स्टुपिडिटी. कई बार हम खुद को ही बोलते हैं ना, ओ बेवकूफ हूं मैं, मेरे साथ ऐसे होना चाहिए था, है ना. तो दैट इज कि हम अपने बारे में बुरा बोलने लग जाते हैं. सो शी कर्स्ड हरसेल्फ फॉर हर स्टुपिडिटी. वो खुद को ही कर्स कर रही थी अपनी बेवकूफी के लिए. स्टुपिडिटी मींस बेवकूफी के लिए. सो दीज आर द 10 वर्ड्स जिनके मीनिंग को लर्न करने हैं and it can be asked in the form of matchings also, right? I'll stop sharing the screen for a minute. Right now, is there anybody who wants to ask any of the words again? Ma'am, but am I not wait a minute, am I not audible? Jasmine, you have written that I'm audible. ma'am, you're audible, but ma'am, please speak a little bit loud. Okay, beta, okay. Is it fine now? Ma'am? Yes, ma'am. All right, beta. You could have told me earlier also. Yes. Now, one by one, if anybody has any problem, please quickly you'll ask this, and then we'll discuss the assignment that I gave you of nouns. Yes. Anybody write your name? By careers. Yes, Persh. My careers. Careers. Where's that word careers, by the way? I didn't discuss any word career. Curse. It is C-U-R-S-E, curse. Right? Curse. You know, you need to know the meanings, and you side by side, you also need to know the pronunciation of the word. Curse है ये. So curse word होता है, अभी मैंने अभी आपको जस्ट बताया है, किसी के बारे में बुरा बोलना या सोचना, उसे बोलते हैं कर्स करना. Yes. Now, Girisha, 1 and 2 word. First word was accustomed. Girisha, were you not there in the class? Anyways, accustomed is the first word. Accustomed का मतलब होता है जब आप आपको किसी चीज की हैबिट हो जाए, आदत पड़ जाए, तो तब हम बोलते हैं कि I am accustomed to that thing. ठीक है? Okay. Now, next word is astonished. The second word is astonished. Astonished का मतलब होता है surprised or shocked. ठीक है, किसी चीज को देख के अगर आप शॉक्ड हो गए हैं तो यू आर एस्टोनिश्ड. आई वॉज एस्टोनिश्ड व्हेन आई सॉ हर डांसिंग. जब मैंने उसको डांस करते हुए देखा तो आई वॉज एस्टोनिश्ड, मैं शॉक हो गई थी. हरगुन बेटे, यू कैन लीव द क्लास, यू डोंट नीड टू ज्वाइन इफ यू आर इन सच अ हरी. वी स्टिल हैव टाइम.